के बोलते हैं आजकल। मेरा विश्वास उठ गया है न्यूज चैनल से। पहले सुसाइड केस था, फिर वो मर्डर केस बना, फिर अभी Yeah. सब भूल गए हैं अबाउट सुशांत डेथ एंड एवरीबडी इज ओनली फोकसिंग अबाउट ड्रग्स इन Correct. बॉलीवुड। Film बनाई Atmanirbhar, which I made in lockdown. It was great. Yeah, I mean, I know you're a great dancer. Hello guys, welcome to Vardalap with Akriti. Today is episode 37 and today we're talking about acting industry. And why not? Acting industry ने इतना सारा धूम धड़ाका मचा रखा है on television. I mean, you switch on, you log on to our Bharat and you see क्या क्या बातें हो रही है आज फिल्म इंडस्ट्री को लेके, बॉलीवुड को लेके, टेलीविजन इंडस्ट्री को लेके. It actually sometimes break my heart, but because of the COVID scenario, बहुत सारी चीजें change हो गई हैं and everyone, I mean, it has impacted everyone's life and you, me, I mean, the industry, nobody is an exception and acting is also not an exception. और पहले maybe जो skills required थे to become an actor, now they have also changed. The role of an actor has also changed and that's what I'm going to discuss today with my guest on the show. And before my guest comes on the show, thank you so much guys for coming in and joining and showering so much of love on me, on Vartalap with Akriti, on this particular platform. I am really happy that today it's been more than 4 months and वार्तालाप चल रहा है और वार्तालाप में आप लोग आते हैं, आपके टॉपिक्स भी मुझे आ रहे हैं. Nowadays some of you, you keep messaging me and you tell me that okay Akriti, I like that episode, I like what you said in that episode, I like what you wore, I like the makeup you did, or maybe you tell me about your topics that I should take. So it's really a nice thing and I feel motivated, and no matter how stressed I am, I show up here every Saturday, every Sunday and do these sessions for you. So thank you so much for doing this. तो आज जो मेरे guest आ रहे हैं on the show, he is someone who who appeared on television for the first time in 2007 और 2007 में इन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर शो किया था Fear Factor India and उसके बाद से इसने बहुत सारा काम किया है in the industry. He's done more than 6 short films. One of them is like the most watched short film. It has reached 43 million views and उसका नाम था Tech Sex. So one of the top 3 most watched short film on YouTube. उसमें ये दिखे हैं. इसके अलावा he's done 9 television shows including कसौटी जिंदगी की, कसम से and many others. And along with that he has also done many television commercials and short films and movies and so many things. I mean, if I'll start talking तो मेरे बोलते बोलते ही पूरा शाम हो जाएगा and the session will go over. So without further ado, let me take my guest live on Vartalap with Akriti. Hi, Hello. Hi. what's up? All great. Thank you so much for such a lovely introduction. by Well, by your words, I've realized I've kind of done so much in life. you have, actually you have. See, I know you as a friend और True, कभी true, भी true. हमने प्रोफेशनली इतना बात किया नहीं, but Right. then when I was researching on you, मैंने देखा oh my god, Google खोलते there's so many articles and then one after the other I still have this in front of me. So Thank you, many thank you. shows you've done, Sikandar. हाँ, थोड़ी बहुत हरकतें यहाँ वहाँ करते पहुंचे यहाँ तक. How sweet. Thank you so much. And it was great introduction. And you, like always, you're sparklingly shining and creating that charm always, like always. I remember our first meeting when we met, and I was like, "Who is this striking girl?" How many years back was that? This was somewhere around easily 7? 7 to 8 years. Yeah, 7 to 8 years at most. So that was great. Yeah, I Yeah. mean, I know you're a great dancer. Let me give out this secret to all your fans. Guys, she's a superb dancer, very brilliant, and मुझे और फख्र होता है, by seeing your growth, that you are from my own hometown, राजस्थान से, जयपुर से हो तो मुझे और ये अच्छा लगता है, so that your own people are growing so well in life. So yeah, that's great. Yeah. And finally, we are live to live, face to face. Yeah, thank you so much, Rizwan. But today it's not about me, it's about you.
We are gonna Well, talk about you. तो मेरी तारीफ है, एक तो डांस बता दिया, मैं डांस नहीं करती हूँ इंस्टाग्राम पे. no, I know Instagram पे नहीं करते, but I'm sure people must know, that these are the USP qualities you have apart from being stunning and model. Yeah. Thanks so much. So रिजवान, आपने इतना सारा काम तो किया ही है, but today we are talking about the new age skills required to be an actor. Correct, क्योंकि correct. लॉकडाउन से पहले तो बहुत सारी चीजें थी जो एक्टर करते थे, मतलब कभी कभी टैंट्रम्स भी दिखाते थे, तो कभी कभी एकदम जम के काम भी करते थे सुबह से लेकर रात तक, but the requirements were different that Correct, time. correct. अभी लॉकडाउन के बाद रिक्वायरमेंट एकदम बदल गई है, क्योंकि एक्टर्स को बहुत सारा काम करना पड़ रहा है. एंड यू नो इट सो वेल बिकॉज आपने लॉकडाउन में मूवी भी बनाई है, शॉर्ट Yes. फिल्म जिसका नाम है आत्मनिर्भर. Yes. तो हम yes. उसके बारे में भी बात करेंगे, बट फर्स्ट लेट्स टॉक Looking अबाउट forward. व्हाट Yeah. वाज द सिनेरियो बिफोर द लॉकडाउन. पहले क्या होता था एक एक्टर की जिम्मेदारी और skills? Well, like before, actor would have their own world to live into, and then they would just focus into their acting scenario more rather than in the other elements which require. आप जब कैरेक्टर को कोई प्ले करते हो तो आप उसकी दुनिया में रहते हो, आपके उसके हाव भाव और उन सब चीज को ध्यान में रखकर आप एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हो, राइट? यही पहले होता आया है. और तजुर्बे के साथ साथ में आपको जब दूसरी चीजों की जब स्किल नॉलेज होने लगती है तो दैट्स ग्रेट, विच इज यू यूटिलाइज. लेकिन ये लॉकडाउन के टाइम और लॉकडाउन के बाद में ना, ये और आज का जनरेशन जो है और आज का जो मार्केट चल रहा है जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म, पीपल आर यूटिलाइजिंग इट, डूइंग बाय देमसेल्फ. So, not, I've seen, people who have not been so great and yet they have been superbly, immensely famous and so on. And some of them, obviously, it takes a lot of hard work, don't get me wrong, and वो इतना कमाल का काम करते करते इतना फेमस भी हो रहे हैं. Now at the same time, when as an actor we talk about, आप कोई दूसरे सेगमेंट में भी जो है ध्यान देना पड़ता है आजकल, चाहे वो डायरेक्शन हो गया, चाहे वो कैमरा एंगल हो गया, बिकॉज इट्स अ टीम वर्क. आप जब एक डीओपी के सामने हो तो आपको वो कैमरा एंगल सही है कि नहीं है, यहाँ पे लाइटिंग सही आ रही है, ये सब सारी चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है. अब लॉकडाउन में क्या हो गया, लोग कम हो गए. इन द न्यू वे ऑफ फिल्म मेकिंग द स्टाफ हैज बिकम लेस. सो डीओपी प्रॉब्ली विल बी लुकिंग एट कैमरा एंगल, सारी चीजें, फ्रेमिंग, सिनारियो सब देख रहे होंगे. बट वो डीओपी के जो असिस्टेंट के असिस्टेंट जो होते हैं ना, 1 2 3 जो स्टाफ जो होते हैं उनके, अगर वो नहीं होंगे तो आपके वो बता नहीं, सर यहाँ का लाइट थोड़ा सा ज्यादा है या इधर का कम है या ये कट रहा है या वो कट रहा है. तो इट्स ओनली हेड पीपल आर देयर. So it is as per your own responsibility to have an idea about these elements as well to keep in mind while filming. Yeah. Yeah, so for the people who don't know what all this is, तो उनके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता देते हैं कि एज एन एक्टर जब आप सेट पे जाते हो तो आप सेट पे खड़े हो, ठीक है. अब आपका काम पहले होता था कि आप एक्टिंग करो, लाइक यू सेड, कि आप अपना कैरेक्टर में घुसो, कैरेक्टर को सोचो, उसके इमोशंस लेके आओ. सो एक्टर वो जोन में रहता था. तो ये जो लाइट होती थी कि आप खड़े हो, ये लाइट सही आ रही है कि नहीं, कैमरा में कोई बाल उठ रहे हैं, जैसे यहाँ पे मेरे बाल उठ रहे हैं, वो कैमरा में वहां पे उठते तो 2-4 लोग होते देखने के लिए कि अरे इसका उठ रहा है, ठीक है, मेकअप वाला आएगा, मेकअप वाला सही करेगा मेकअप, कोई क्रैक दिख रहा है, क्रीज दिख रही है, बाल ठीक करेगा. ड्रेस पे अगर कुछ वो आ रहा है, सल आ रहा है, तो ड्रेस ज्यादा आएंगे और ठीक करेंगे, You're right. तो इन सब सेगमेंट में अलग अलग डिवीजन में लोग हुआ करते थे, तो उनके भी स्टाफ हुआ करते थे, टीम हुआ करती. तो टीम वर्क होते होते वी वुड ऑलवेज लुक परफेक्ट इन ऑल सिनारियो. और आजकल जो है हमको खुद को ही हर चीज का ध्यान रखना चाहिए एज अ न्यू एज ऑफ फिल्म मेकिंग और एज अ न्यू एज ऑफ एक्टिंग. तो जितना आपको इन सब चीजों में ध्यान रहेगा, आप उतनी ही अच्छे से और चीजें कर पाएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट हियर टू प्रमोट एनी ऑफ द शोज विच आर रनिंग, बट देयर इज समथिंग विच इज, काफी लोगों ने जो है लॉकडाउन के अंदर ही काफी लोगों ने फिल्में बनाई हैं. कहीं सम पीपल हैड द फॉर्चुनेट, दे बीन फॉर्चुनेट टू हैव अ टीम टू शूट फॉर देम. एंड कई ऐसे लोग हैं जो खुद सेल्फ शॉट करके फिल्म करके बनाई है. तो कंटेंट इस तरह से बनते भी आया है, तो वो बहुत ही क्रिएटिवली उसको एग्जीक्यूट करते हुए, शूट करते वक्त भी, और टोटली डाउन द टेबल टू गिव इट टू द ऑडियंस, उसको बतौर तरीके से सारी चीज को ध्यान में रखे. आई मीन हैट्स ऑफ टू ऑल दोस पीपल जिन्होंने इस तरह से काम किया है. एंड ये उसी आई थिंक ऑल थैंक्स टू लॉकडाउन
कि हमें जब खालीपन में इतनी तजर्बा मिल गई कि हम इतनी सारी चीजों में जो है गौर से देख सके और छोटे छोटे नुआंसेस पे जो काम कर सके, और दैट इज व्हाट एक्चुअली मेड मी क्रिएटिव बंदा जो है वो शांत से बैठ नहीं सकता, और मैं तो स्पेशली ऐसा बंदा हूँ कि कहीं पे भी बैठ ही नहीं सकता, आई हैव टू कीप ऑन मूविंग समवेयर और द अदर। सो मेरे मन में यही था कि भाई कुछ ऐसे टाइम पे जो है कुछ ना कुछ तो बनाना है, बिकॉज टचवुड आई हैड had an experience of filmmaking from very early age. I started at the age of 15. I was assistant in one of the renowned established film production houses back in days. So वहाँ से and luckily I was also my first film as a AD, and Irfan sir was a part of it, and तो वो लॉकडाउन में बड़ा इमोशनल सा मैं हो गया था, because we all love Irfan sir, और हमारे नेटिव से भी हैं तो वो और ज्यादा करना वो क्लोज पन होता है। Yeah, it was sad and it was heartfelt and so on. So it was a very amazing journey for me to learn and something, during those days with him. मुझे आज भी पता है कि वो बंदे जो हैं शख्स, I think 105 और 9-10 कैसा कुछ उनका फीवर था। मिडनाइट रात को फिल्म सिटी में हम शूट कर रहे थे, पूरा तूफानी रामसे प्रोडक्शन वाज प्रोडक्शन हाउस। तो रामसे की फिल्म जो हमेशा या तो थ्रिलर, सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री और या हॉरर वगैरह हुआ करता है, तो वो एम्बियंस ऐसा माहौल उनका क्रिएट होके रखा था। तो बारिश होना, बंदे जो है फीवर में हैं, वीक हैं, बट येट ही इज देयर टू शूट, रोल इट। मुझे आज भी याद है सर का डायलॉग, जब तक मैं गिरता नहीं हूँ ना तब तक हम करते जाएंगे। मतलब सर बड़ी बात है, क्योंकि बिकॉज आई वाज द यंगेस्ट वन, तो मुझे कहा जाता जाओ सर को बुला के लेकर आओ। सो वो पास में रहते रहते कुछ चीजें सर से सीखने मिली है। सो दैट वाज अ ग्रेट पार्ट। तो वो चीजें फिल्म मेकिंग का देखते हुए करते बीइंग विद सिस्टर बिहाइंड द कैमरा एट द अर्ली एज एंड फेसिंग माई सेल्फ, आई थिंक आई बिगन माई करियर इन 2007 एंड that was a bang on entry for me, so तब से मुझे लगा यार अब तो यही करना है, I want to be in front of the camera, because not many are fortunate to have such kind of a bang on entry. I mean, not many are also aware, because back in days इतना PR का ये सब सारे चर्चे वर्चे करना वगैरह बहुत कम होता था। तो आज के जनरेशन में तो वी हैव सोशल मीडिया, पहले तो ऐसा बहुत कम होता था। सो फियर फैक्टर को जीतना, 10 lakhs फॉर यंग पर्सन, 17 साल में आप 10 लाख जीतते हो, all white money, and और उसके साथ साथ में you. अच्छा, let's talk about this experience. You told me that Fear Factor में you did the last task जहाँ पे आपको patriotic feeling आई थी। तो you were very young at that time, 17 साल की उम्र में Fear Factor में जाना और वहाँ पे जीतना बहुत बड़ी बात है। तो उसकी स्टोरी बताइए लास्ट टास्क वाली। हमें जीतना, देखो हार जीत तो चलती रहती है, बट मेरे लिए वो और भी ज्यादा थोड़ा क्लोज वाला मोमेंट है, वो हार्ट टची है, सोलफुल सा है, बिकॉज एक देश को प्रेजेंट करना हर किसी के किस्मत में नहीं आता। ये तो मेरी किस्मत में ये अनुभव रहा, तो आई वाज रियली रियली टच्ड बाय दैट। आई स्टिल रिमेम्बर, जब भी मैं उस मोमेंट के बारे में सोचता हूँ, व्हेनेवर आई गो फ्लैशबैक, तो मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं, बिकॉज मलेशिया के ट्विन टावर्स जो हैं उनके सेम हाइट का एक टावर है जहाँ जिसको कहा जाता है सैटेलाइट टावर, आई थिंक इट्स कॉल्ड अनमिनारा टावर, यस, जो समवेयर अराउंड 80th फ्लोर पर है। तो उसके ऊपर रॉड खड़ा कर देना, अगर ये पूरा टावर है, यहाँ से इतना लंबा रॉड है, तो यहाँ फियर फैक्टर का झंडा लटक रहा है, मुझे तिरंगा झंडा यहाँ से वहां ले जाकर एक्सचेंज करना है और वापस आना है। एंड 80th फ्लोर, गाड़ी छोटी छोटी एकदम चींटियों जैसे दिख रही है नीचे, और हवा चलना, और इस तरह से माहौल का पूरा, एंड डर सभी को लगता है, जैसे ऋतिक रोशन कहते हैं, लेकिन डर के आगे जीत है। और मेरी जीत का वजह सिर्फ ये थी कि तिरंगा झंडा है, मैं गिर सकता हूँ, मेरे पीछे हारने से, पर तिरंगा झंडा नहीं गिरना चाहिए, बिकॉज ये गिर गया हवा के जरिए, पता नहीं खुदा ना खासा कहाँ जाएगा, किस दिशा में जाएगा, उसे पकड़ने के लिए मैं सुपरमैन कैसे बनूंगा, सो आई हैड टू बी वेरी प्रिकॉशन, एंड इट वाज अ हार्टफेल्ट मोमेंट फॉर मी दैट मैंने सीने से उसको लगा के पूरा टास्क खत्म किया, वापस आया, by the grace of God it went very nice and ease, कम समय में मैंने कर लिया, and that is how creative history, because I was the only one, there was no competition for me, because second task में सब के सब जो है वो डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, वो उन्होंने कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाया टास्क, एंड दैट इज आवर क्रिएटिव हिस्ट्री, और आज तक ये हिस्ट्री है, क्योंकि उसके बाद में ऐसा कभी किसी को मौका मिला ही नहीं है। सो दैट इज हाउ इट वाज अ जर्नी, सो आज तक यादगार है, एंड आई स्टिल रिमेम्बर माय सिस्टर्स वर्ड उस शाम को जब ये शो टेलीकास्ट हुआ, और जब ये इस तरह से पूरा टास्क दिखा गया। और खूबसूरत बात देखो, ये
A.R. रहमान सर का वंदे मातरम गाना उन्होंने बजा दिया, तो वो देखते ही रोंगटे खड़े हो गए थे। तो उस दौरान, उस मोमेंट माय सिस्टर्स वर्ड्स बता कि आज तक इतने कॉल्स मुझे नहीं आए because she herself been an icon and an actress and renowned one. Everybody knows in India that who Shama Sikandar is, and in fact globally. और उतने कॉल उस दौरान नहीं आए, so that was a really big thing and it was really surprising, that all this element, all this entire thing became a very good package for me to begin my career, like that, yeah. Right. So Shama is very popular. I know. I mean, I have grown up looking at her serials, her movies, her advertisements. And she's Correct. very popular. मतलब उनकी That's कहीं पे भी face दिखता है तो people know her. True, Okay. true, true. And so क्योंकि आपकी sister इतनी famous है, आप जब enter हुए in the industry, was it helpful or was it like a lot of pressure कि मेरी बहन इतनी बड़ी star है, मुझे भी उसके जैसा बनना है? इस तरीके का कुछ? नहीं, देखो क्या है ना, ये जर्नी में कभी इस चीज की जो है प्रॉब्लम नहीं आई है, वो एक प्रेशर कभी नहीं रहा है. आई हैड ऑलवेज हैड दिस माइंडसेट दैट आई विल वॉक माय ओन पाथ. आई एम ऑलरेडी इन दिस सिचुएशन दैट आई एम blessed to have these kind of a world around me and the people, and especially having such a major pillar which is the base of my life. So that has always been a support in a way from the family and the world out there. I knew I'm going to face myself. जंगल का राजा अगर शेर भी है तो शेर के बेटे को, सिम्बा को भी जो है जंगल खुद ही चलाना होता है, तो उसको हर गली गली चप्पा चप्पा हर किसी का सामना खुद को करना होता है. So that is how I always kind of took that vision in life that I have to face my things myself. वो करते करते, और हाँ, बतौर तरीके कितना भी इंसान कह ले, कहीं कहीं ऐसा एक मोमेंट आता है जहाँ पे मुझे लगता है यार काश ऐसा कुछ हो जाता, that we could approach it up, or we could have some connection, we could have something or the other. But Shama has always been super supportive throughout the time, and जहाँ पे उन्हें लगा कि I'm well deserving, she has always been supporting. And जहाँ पे लगा कि नहीं है, या because she has a better understanding of the entire industry and so on and the projects whichever आते हैं, तो जहाँ लगता है वो she approaches, जहाँ नहीं लगता है वहाँ पे बेटा तो करते जाओ, तो आगे बढ़ते यार, तो सोच मत, कुछ ना कुछ बढ़िया आ ही जाएगा. तो she has been a very great positive energy for me throughout the journey. Yeah. I am so happy to see your relationship with your sister. Yeah, क्योंकि yeah, क्या होता very है good कि bonding. Yeah. हाँ, even me and my sister, we have a very good bonding. So no matter what, उसको कुछ होएगा ना, सबसे पहले मैं आगे खड़ी हूँ. And I'm sure आपके साथ भी ऐसा ही है. Yeah, है ना? totally. It's for me, it's the other way around. I stand, hey, कौन है, क्या चाहिए भाई? अच्छा तुम भाई हो ना? Okay, भाई बना दिखाना है मुझे. नहीं, मैं मेरी not बहन- भाई पे ना, but yes, वो आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, प्रोटेक्टिव वाला नेचर आ ही जाता है ना, वो होना भी पड़ता है. And then plus we come from this fraternity that she is an Right. icon somewhere down the line, and वो एक चीज है. But रिस्पॉन्सिबिलिटी एक भाई की और बढ़ जाती है कि मैं मेरी बहन की सुरक्षा करूँ, रक्षा अभी तो करूँ. इतने जाके डोले वोले बनाने पड़ते हैं. I'll buy all that, yeah. I mean, despite of my own career to look presentable and so on, I think it's every brother's responsibility to be strong mentally, physically, in order to, be there and be protective. And not just bhai, but for every lady down there. Every who are guy. there. Every lady down there who are out, who are girls out there, they are facing so many situations in life. So the moment, if you are not ready, how will you able to face it, or how will you able to escape, or how will you able to, protect to one? So that one thing which is individually is there. So I would suggest everybody to remain fit, and be kick-ass. Yes. अभी ना टीवी पे मैं देखती रहती हूँ रोज कुछ ना कुछ अबाउट बॉलीवुड, अबाउट टेलीविजन, अबाउट like since the time Sushant has died, something or the other is happening on television, especially Republic India, Republic Bharat, and Right, everybody is shooting and hunting down people from the Bollywood industry. What do you feel about it? Well, first of all, it's a major loss on Sushant, because he's been also a good friend back in days before even, I think during the time when I was shooting for Kasam Se, and he was also shooting for Ye Rishta Kya Kehla- no, my bad, that show which he was doing. पवित्र रिश्ता. Pavitra Rishta. पवित्र. Yeah. So, वो शो करते वक्त हम यहाँ पे भी कयामत शो किया करते थे साथ में, तो सेट आसपास में होते थे, और उसके अलावा
हमारे उस दौरान की गर्लफ्रेंड्स वगैरह जो फ्रेंड्स वगैरह हुआ करती थी, तो हम जो है साथ में हैंग आउट भी किया, राइट, वो पुरानी बातें हैं। तो वो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन, घूमना फिरना, सारी पार्टी वगैरह करना, वो उस वक्त तक चलता था, पर उसके बाद में वी वर नॉट इवन मच इन टच बिकॉज ही गॉन, देन आफ्टर दैट गॉन रियली रियली हाई इन लाइफ, एंड देन आई हैड मूव डाउन टू लंदन। ये सब सारी चीजें छोड़ छाड़ के आई वांटेड टू ट्राई इंटरनेशनली, मैं वहां चला गया, तो वो वापस वो दोस्ती यारी जो है नहीं बन पाई। बट इट इज अ मेजर लॉस टू आवर इंडस्ट्री एज पर टू me. He's been super talented, super enthusiast and very inspiring, you know. और पर ये सब चीजें होने के बाद में मेरे ये समझ में नहीं आता है कि आजकल टीवी में लोग इस चीज का फायदा क्यों उठा रहे हैं, जस्ट बिकॉज दिस इज मेजर लॉस टू आवर ह्यूमन बीइंग एंड देन द इंडस्ट्री, आई वुड से। और इसका लोग हर चीज का मुद्दा बनाए जा रहे हैं, यू नो, एवरीबडी जस्ट कमिंग आउट ऑफ इट for the sake of it, or some people do not even have any idea about it. Let's be very honest. I think on a human level, it should be somebody, you lost a life, it's gone. आप उनके लिए दुआएं मांगे कि वो सुकून में रहें, और जो भी हुआ परिवार के लिए और जो भी उनके लव वन है उन पे ध्यान दें, अच्छी एनर्जी पे ध्यान दें, rather than negatively ये तू, ये ता, ये ती एंड चिंता, बस वही चल रहा है। एक्चुअली सुशांत का ना आजकल जो पहले सुसाइड केस था, फिर वो मर्डर केस बना, फिर अभी सब भूल गए हैं अबाउट सुशांत डेथ, एंड एवरीबडी इज ओनली फोकसिंग अबाउट ड्रग्स इन बॉलीवुड। करेक्ट। एंड अभी तो दीपिका की आज वो चल रही है सुनवाई। करेक्ट, दैट इज आल्सो अनदर थिंग व्हिच इज देयर। आज दीपिका की वो सुबह एनसीबी ने कर रही है सुनवाई, वहाँ पे बात हो रही है। आज सारा अली खान को बुलाया गया है। Anxiety issues, and she is requested also for Ranveer to be next to her, and these factors are there. So, but ये एक मेरे बात समझ में नहीं आती है। आप देखो, पहली बात तो ये करना गलत है, ठीक है। कोई भी मेरे फलसफे में, मेरे विचारों में, किसी और भी सब्सटेंस पे डिपेंडेंसी रखना लाइफ में, जिंदगी के मजे लेने, आप ऐसे लीजिए। जिंदगी इतनी ऑलरेडी वैसे खूबसूरत है, अंदर से विचार और मन अगर अच्छा है तो हर चीज अच्छी होगी। यस, वी डू हैव ऑल द डार्क साइड, वी डू फेस द डार्क साइड, दैट डजंट मीन दैट वी शुड become one of the darker side also in life. You know, life has such a wonderful scenario, wonderful way of living things. You connect, you interact, you communicate. Yes, मैं मानता हूँ कुछ लोग घबराते हैं, कुछ लोग बात नहीं कर पाते हैं, ओपन नहीं हो पाते हैं, but what does it take? The moment ice is melt your water and पानी मिल जाए तो क्या नजराना, क्या अलग हुआ, सोचो, है कि नहीं? तो वो फलसफा अलग हटाने के लिए लोग डिपेंडेंसी ले आते हैं किसी और चीज पर। आई थिंक उस चीज का अगर आप करते हैं तो उसको मिस यूज करेंगे तो एनीथिंग व्हिच इज हार्म। इफ आई एम ओवर ड्रिंकिंग अ वाटर, इट इज अनहेल्थी फॉर माई सिस्टम। वी ऑल नो दिस। आग भी जब जलती है, हमें पता है चटका लगता है, पर इसकी भी एक सीमा होती है। आप इतने तक ये शरीर झेल पाता है, उससे ज्यादा करोगे आपकी स्किन जल जाएगी। यू आर अवेयर ऑफ इट, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज। So I think very smartly, very, I think better is not to do it. And even if you have such kind of a problem, doctor do prescribe you to take certain things, but you do not get stuck there. You know, life is all about moving. मुझे समझ नहीं आता कि मुझे समझ नहीं आता all these news channels, no, without having any knowledge, without doing any kind of research, कुछ भी आके बोलते हैं आजकल। मेरा विश्वास उठ गया है न्यूज चैनल से। आई सॉ उस दिन वो रिपोर्टर आके बोल रहा था कि सीबीडी ऑयल है, सीबीडी ऑयल है। आपको पता है कि मैक्सिमम पेन किलर्स में सीबीडी ऑयल डलता है। इट्स अ मेडिसिन। It is a medicine down the line, yeah. इट इज अ मेडिसिन, ठीक है। और दीपिका ने चलो किया, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया आज। आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट, बट शी एक्सेप्टेड दैट शी हैज टेकन इट एंड इट इज हर व्हाट्सएप ग्रुप, और उसने बोला है कि हाँ मैंने ये बात किया है, बट इट इज हर पर्सनल लाइफ। आप उसे नेशनल न्यूज क्यों बना रहे हो? इतनी सारी चीजें हमारे देश में जो चल रही है। आज हमारे देश में कोरोना नंबर 2 पे है, 53 लाख पीपल आर डाउन विद कोरोना। नंबर 3 पे था इंडिया, नंबर 2 पे आ गया। हर दिन 85,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना हो रहा है, केसेस आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, जीडीपी डाउन है -23%, स्कूल्स नहीं खुल पा रहे, बच्चों का एक पूरा साल खराब हो गया। इतनी सारी चीजें हो रही है हमारे देश में। किसान आ गए आज, वो कल की न्यूज है, देवर ऑन द रेलवे ट्रैक्स, ब्लॉकिंग द रोड, नई पॉलिसीज रोज बन रही हैं, उस पे रिपोर्टिंग करो ना। उस पे तो कोई 1 मिनट नहीं दिखाता, but everybody is behind Deepika and Sara and Shraddha and I don't know who all. मसला क्या है, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पे ना
ये वहीं पे जहाँ पे लाइमलाइट है ना, अब वहीं पे जो है कुछ ना कुछ हरकत करते हैं, जी बिल्कुल। जहाँ पे रोशनी ज्यादा होती है, आप पत्थर वहीं मारते ताकि अंधेरा हो जाए या वो टूट जाए या वो क्रैक हो जाए। तो मीडिया इस तरह से चल रहा है। देखो, उनको भी कंटेंट चाहिए डाउन द लाइन, I understand, but it's my humble request to not to have such kind of a content. There are so many issues are there. There are so many problems are there, you know, in India, apart from just Bollywood. Bollywood is just basically 20% in the whole totality to which gives you an entertainment, you know. But there are other elements are also there. There are major, bigger issues are there which nobody is touching it. Farmers का जैसे आपने बताया, so many people have come down from such a level, you know, that they had to suicide, they have to do all that, they have to fight for their own rights. So आप क्या करना चाहते, आपकी नजरों में क्या इवेल्युएट है, आप खुद ही करके देख लीजिए। तो इतने चैनल्स भी हो गए ना, सब कुछ यही सिर्फ टीआरपी के लिए, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स लाने के लिए, सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए रोज रोज बॉलीवुड के किसी ना किसी सेलिब्रिटी पे, किसी ना किसी फेमस इंसान पे लोग धरना दे के बैठते हैं। और इतना गंदा हो गया है रिजवान आजकल, तो आई कांट टेल यू, लाइक यू ओपन दिस टेलीविजन, रिपोर्टर्स ऐसे गंदी हालत में, आधे तो रिपोर्टर ही आपको उठाई गिरे जैसे दिखते हैं। वो लोग ऐसे, उनकी शर्ट खुली है, बाल खराब है, कोई लाइट नहीं है, फेस पे कुछ भी हो रहा है, और ऐसे भाग रहे हैं और भाग भाग के रिपोर्टिंग करे जा रहे हैं। रोड पे रोक लिया यार गाड़ी को, आप अपने घर से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते। व्हाट इज दिस रिपोर्टिंग? रिया का मैंने जब इंसिडेंट देखा, वो सारी चीज जिस हिसाब से मॉब्ड, शी वाज मॉब्ड बाय द PR, बाय द कैमरामैन, फॉरगेट द फैंस, फॉरगेट द यू नो एनी इवेंट वेयर वी गो, हमें अक्सर इस तरह से भीड़ आ जाती है, देयर आर सिक्योरिटीज आते हैं, पुअर थिंग, शी हैड टू फेस इट ऑल दैट, कौन कैसा क्या है, जहाँ पे कोरोना कोई किसी के पास में खड़ा ना होने की आप बात कर रहे हो, बचने के लिए, जहाँ पे यही मीडिया वही सारे सागा गा रही थी, और यहाँ पर ये पूरे लेडी गागा बन गए, they've gone lost, they've kind of gone mad in a way, चिपकू इस तरह से हो गए जैसे कुछ लेना देना ही नहीं है, यू नो, कोई डर ही नहीं है, कोई प्रिकॉशंस ही नहीं है। तो ये सारी चीजें खुद भूल के अब आप क्लेम करते हो, आप रियलिटी में जाओ, आप अपना फुटेज देख लो। I think not long, a month and a half ago, you were talking something else, and a month and a half after, you're doing something else. So who's right and who's wrong here? You only describe, rather than pointing everybody, you are this, you are that, or you X, Y, Z. That one thing is. देखो, मुझे पता नहीं रिया ने क्या किया, क्या नहीं किया, अगर वो गुनहगार है कि नहीं है, आई डोंट नो, एंड आई एम नोबडी टू नो, क्योंकि मैं वहां थी नहीं ना आप थे, हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन अगर इवन इफ शी इज द क्रिमिनल, इवन इफ शी इज द क्रिमिनल, फिर भी उसको कम से कम ह्यूमन राइट्स तो दो ना। एक ह्यूमन राइट होता है, राइट टू प्राइवेसी, वो दिया ही नहीं उसने, बिना कोई जजमेंट आए उसने आपको, आपने मीडिया ने अपने आप जजमेंट कर दिया, उसे क्रिमिनल बना दिया। एंड आई एम सॉरी, आई हैव नो सिंपैथीज विद रिया और एनीबडी, आई एम जस्ट सेइंग कि ऑन अ ह्यूमन लेवल ये गलत है यार। आप एक एक्टर हो, सचो रिजवान, आपके साथ अगर ऐसा हो तो आप क्या करोगे? I have no idea. I'm already speechless by looking at her incidents, by उनकी हालत को देखकर I'm speechless. I do not even know कि मेरे साथ क्या होगा, you know. And being a man, तो वो तो पता नहीं कैसे क्या अत्याचार करना शुरू कर देंगे. I have no idea. I swear. I mean, because it has created such an amount of hatred, you know, towards to Riya or anybody, our industry fraternity. इस पे पूरा का पूरा इस तरह से इतना नेगेटिव कर दिया है। वही इंडस्ट्री है जो आपको खुश करके घर भेजती है। जब आप सिनेमा में आते हो, आप अपनी दुखियारी जिंदगी को लेकर जब आते हो सिनेमा में, व्हाई डू यू कम टू सिनेमा? टू एंजॉय, टू गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव। यू फॉरगेट अबाउट योर रियलिटी, यू कम टू एक्सपीरियंस द ड्रीम, वी प्रोवाइड यू दैट ड्रीम। आप जब वापस, यही ऑडियंस अगर आपको इस तरह के मुद्दों के, इस तरह के हालातों पे जब आती है, तो यही है, लोग उल्टे जवाब देने लगते हैं या इस तरह से रिएक्ट करते हैं। ये फलसफा मेरे समझ में नहीं आया। ये जो सिक्के का दो हिस्सा है ना, दोनों पहलू, ये मेरे समझ के बाहर है। तो या तो हमारे में तो ऐसा है, आप तो इस तरफ हो या तो इस तरफ हो, या उस तरफ तो उस तरफ, दोनों सिक्के ना चला के अपने खाली बैंड बाजा बजाओ, समझो, दिस डजंट वर्क। सो ये फिलोसफी अपने काम नहीं आती। बट यस, दैट वन थिंग इज दैट पीपल हु आर जेन्युइनली लॉयल एंड ट्रू टू यू, they will always love you. I know one thing for the fact, आप कुछ रहो या ना रहो, या कुछ बन जाओ या आबाद हो जाओ, कुछ भी हो, जो आपको प्यार करते हैं वो हमेशा आपको प्यार करेंगे। आपकी कंडीशन अच्छी हो, खराब हो या बेहतरीन हो,
कुछ फर्क नहीं पड़ता. So this is one thing is that और yes. उस तरीके के लोग ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज के जब दौरान में मिलते बहुत हैं से तो हैं. उन्हें पकड़ लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए. I mean, yeah, that one thing is that, I mean, you have to see, ताली दोनों हाथ से बजती है, you know, अगर कोई आपको इस तरह का शख्स मिल जाता है, इस तरह की, you know, lobby मिल जाती है, you have to equally provide the same, you know, you need to make an effort to Right. have that and maintain that thingy. So ये एक चीज है. Right. और but yeah, मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि नेगेटिव जो चल रहा है टीवी पे, कोशिश करें ना देखें. इससे बेटर आप दूसरे प्लेटफॉर्म में जाएं. इतने हमारी इंडस्ट्री के फ्रेटर्निटी के लोग हैं जो इतने मेहनत कर रहे हैं, ऐसे कोरोना से लड़ते हुए भी अपने लाइफ को जो है रिस्क में लेके जाकर आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं. आप वो जाके देखिए तो बात बनेगी. Absolutely. And now getting back to the topic, न्यू एज एक्टर के न्यू एज स्किल्स पर हम बातें करें कि कहाँ कहाँ पहुंच गए. बट या गेटिंग बैक टू द टॉपिक, न्यू एज different skills that an actor has to imbibe. Hi. Sorry. You're back. Yeah, no problem. Yeah, you're back. Am I audible? Yeah, no, Okay, you're back. so I was asking you, what are the new age skills, the new age, things that a new actor or an actor who's been working in the industry needs to know now in the present scenario post-COVID, जब बहुत सारे लोग सेट पे नहीं आ सकते, when we have restricted number of people, क्या क्या है जो एक एक्टर को करना पड़ रहा है आज? See, I think whenever you're part of any subject, right? Whenever you're part of or whatever the character you're playing, you need to understand the mechanism of it. As a character, individually सभी का homework होता है, जो काम होता है, जो वो करते हैं, अपने characters को पकड़ लेते हैं. और साथ ही साथ में ना मुझे लगता है कि वो पूरी टीम एफर्ट जो होता है, उनकी भी एक्सपर्टीज कहीं ना कहीं आपको माइंड में रखनी चाहिए. बिकॉज लेट्स से कल जैसे मैंने बताया, एक डायरेक्टर है, एक डीओपी है, और उसके साथ साथ में दूसरे टेक्नीशियंस वगैरह हैं. जब अगर ये लोग भी ना हो तो आप कैसे क्या करोगे? हमारे आर्मी में कहा जाता है कि असली फौजी वो होता है जब कोई हथियार ना हो. आप तब कैसे सामना करोगे? तो इट इज सेम एज दैट हियर. हाइपोथेटिकली लेट्स से इवन यू मेकिंग कंटेंट बाय योरसेल्फ लाइक द वे आई डिड. हमने जब फिल्म बनाई आत्मनिर्भर, व्हिच आई मेड इन लॉकडाउन, मैंने वो दौरान पे बनाई जब कोई पड़ोसी भी आपके घर पे आ सकता था, नॉट एन आउटसाइडर, So that is how it all began, and I realized कि यार मैं अगर किसी को नहीं ला सकता, कहीं ना कहीं मुझे भी टेक्निकली ये ग्लिच हो रहा था माइंड में कि यार मैं खुद कैसे शूट करूंगा. I need somebody or the other because it was about one person communicating with himself. So there were two of me, not just one. So just imagine the complications, and at the same time the complications what was running around in our society. टीवी पे ये सब चल रहा है, महाधार चल रहा है, कोरोना चल रहा है, ये सारी चीजें चल रही है, and you need to yet to be positive and keep on fighting your inner demons which are haunting you, loneliness, ये वो सारी चीजें जो सभी के सभी जो है कहीं ना कहीं लॉकडाउन में उनकी जर्नी रही होगी, चाहे वो कहीं पे भी रहा हो. बॉम्बे में ज्यादा हो रहा है, लेकिन कहीं पे भी और कोई दूसरे शहरों में रहा हो तो अकेला तो कहीं ना कहीं रहा है इंसान, भले चाहे परिवार में रहा है, पर अकेला जब खुद पे बात आती है तो इंसान को ऐसे वो प्रिकॉशंस करने पड़ते हैं, वो सोच विचार रखनी पड़ती है. सो दैट इज व्हाट आई हैड इन माइंड while creating this film. And Azan Ori, can we have on hold for about 30-40 seconds? Is that okay? Sorry, what do you want to do? मैं कह रहा हूँ ईशा की अजान हो रही है. Can we have 30 seconds on hold? Is that okay? बिल्कुल बिल्कुल. We can go through the comments which are there. Can I talk or should I stay quiet? You can. I can talk. Yeah, you can. You don't want to. Okay, so my dear friends, क्योंकि अजान हो रही है इसलिए Rizwan is going to be quiet for some time. So in the meantime, I have so many comments over here. Let me go and read them. Most of the comments are for you only, Rizwan. सब आपको बोल रहे हैं you have an inspiring film and they really like you and your fans are here. उसके अलावा, oh yeah, this Gogoi is wishing me happy birthday. Thank you so much. Amrish, so sweet of you. And अरे it's okay, it was पहले, अभी नहीं हो रहा, पहले था, हो गया 6 दिन पहले, last week. And मूवी कब रिलीज होगी बिल्कुल हम पूछेंगे उनसे. सिद्धार्थ, आप मुझे एक्टिंग करते हुए कब देखोगे? पता नहीं यार, आई एम नॉट एन एक्टर. वैसे मैंने किया हुआ है, आई हैव डन अ मूवी ऑल्सो एंड मैंने कुछ टीवी शोज भी किए हैं, बट देन आई थिंक एक्टिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट करियर
एंड मैं पर्सनली, मुझे लगता नहीं है मेरे अंदर इतने सारे स्किल्स है कि मैं बहुत अच्छी एक्टर बन पाऊँ. आई एम अ टॉकर, सो आई टॉक. एंड थैंक यू so much, Amrish, for wishing, and so many people here always sending messages. Extravagant Babita, thank you. Last week था मैं बड़ी हो गई, but I refuse to grow all this year. I completely refuse. This is not my birthday. I don't want to grow old in the lockdown. Yeah, what is this? 6 months gone. चलो थोड़ी देर में when Rizwan will be back, we'll talk to Yes, him. yes, And I'm back. I'm back. I'm back. I'm back. I'm back. okay, Rizwan is back. What's So, up? first of all, belated happy birthday. I'm myself Thank kind of missed you. you out, and I saw the pictures. They were really nice. You had an amazing cake session going on. I was pretty jealous. That where is my part of the share? Adi, this time I got 4 different cakes to cut on my birthday. वही मैंने So, देखा केक एक नहीं दो नहीं तीन तीन चार चार हैं और मैं जेलस हो गया मेरा हिस्सा कहाँ है आ जाओ घर, आ जाओ, मैं खिलाती हूँ. हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं है. जरूर But जरूर I think all thanks to my family, though it was a birthday in the lockdown, but still they tried the best कि To make मुझे it feel happen. नहीं होगी that it is the lockdown. Correct, So correct, I correct, really correct. appreciate that about them. I thoroughly understand that because mine was in July 10th, so it just passed by. So उसमें भी यही था जुलाई में तो और भी restriction थी कम ही लोग थे. September बिल्कुल was जुलाई very में तो बहुत luxurious. ज्यादा. September was very luxurious. You know, people could go out and meet and so on. So that one thing was there. But anyways, coming back to our topic. Yeah. हाँ. So first of all, सारे जितने fans हैं, जितने दोस्त यार जो सभी जो यहाँ पर इस live session में आए, thank you so much. Lots of love to you. Thank you for supporting and support Akriti. This is a rock star, dear friend. And now coming back to our topic. So basically जब हमने लॉकडाउन में ये आत्मनिर्भर बनाई तो मेरे विचार में यही था कि यार इसको किस हिसाब से ये काम किया जाए. So 6-8 लोगों का काम मैंने खुद से किया. In terms of एक some part of the creativity जहाँ पे हम creation में जब जाते हैं, you have a vision, you have a thought about a subject. Then I thought of writing. I said, I'm not that great in writing. I'll get somebody who's good at writing. So I made a phone call to my friend of mine, where he is a great painter, an artist, and an actor. So I asked him, ऐसा कुछ subject है यार, तू लिख पाएगा क्या? He said, मैं लिख तो दूंगा. I said, चल लिख तो दे, तू लिख दे. सोचना क्या? Then he started writing, and then I had this technicalities. मैंने घर पे पूरा homework कर लिया यार, यहाँ पे इस तरह से ये frame लगेंगे, ये सारी चीजें वगैरह होगी, which is a DOP's job down the line, तो वो भी चीजों को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करी. एंड देन केम दी टेक्निकलिटीज, कि हम कैसे शूट करेंगे. अब ये लॉकडाउन के दौरान में where do I rent the camera, where do I get the cameras? Then I thought of the best simple way it is to shoot it on a phone itself and a smartphone. So that is what I just did, and eventually it turned out to be pretty decent. And I happened to get this DOP friend of mine, which was just living just 2 blocks away, So I could go to get things from the medical. So once I got him at home, चलो ठीक है यार ये सिनारियो है, आप लगा इसी को शूट कर लो. तो वो ही एक ही रात में ना सारा ये जब आप पिक्चर देखोगे आपको पता चलेगा व्हाट इज द आउटकम. ये सब उसी रात का सारा क्रिएशन है. And that's what made me, the madness, the magic madness bring the magic, basically, how they say it, passionately, सारी चीजों को इन्वॉल्व करके सारी चीजें करके. एंड पोस्ट एडिटिंग में भी जब प्रोजेक्ट बनाया था कोई स्टूडियो कोई ऑफिस वगैरह नहीं खुले थे. एंड आई वाज थिंकिंग, एंड मेरा लैपटॉप लॉकडाउन में खराब हो गया, मैं कहाँ से रिपेयर कराऊं, किसको बताऊं. देयर इज नो टेक्नीशियन, नन ऑफ थिंग्स. मतलब आप जब कुछ क्रिएट करने जा रहे हो, सडनली सपोर्टिंग एलिमेंट्स ही खराब हो जाए तो आप क्या करोगे. So that is where this our very amazing editor Ajay Verma ji, जो है हमारे साथ में पहले वेब सीरीज हमने बनाई उनमें काम किया. He has done so many films. He had shot cut the trailers of so many big films. My Name is Khan and so on. There are so many in the list. So he's a gem of a person. मैंने उनको बताया भाई ऐसा है ये प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ, आप इसका हिस्सा होना चाहेंगे क्या. I said आप भेज दो मैं देख लूंगा करके. I said he's a one-man show who would do all the things. He is a master of many things. So he was the right choice. I said I'm really happy he's on board. चलो कर लेते हैं. So that is how that eventually that project happened. And till the end, see क्या होता है, जब आप एक तो पिक्चर को 3 स्टेजेस होते हैं, आप लिखते हो तब कहानी अलग होती है,
शूट करने जाते हो तब अलग कहानी हो जाती है, तो जब टेबल पे बैठते हो तब अलग कहानी होती है। तो ये अलग अलग जी। चीजें, बट एज अ डायरेक्टर, एज अ मेकर, it is your responsibility कि what to first the thought origin begin, it has to come to that world, you know, that touches, that shine. So that is what expertise one need to have it. I think it comes over the period of time of experiences while keep on making. So मैंने इतने content पहले बनाए हैं लोगों के सामने, sometimes I've been a shadow and I've done part things and I've given name to others and you know कि हाँ नहीं वो सब कुछ अगर हम ही कर लेंगे तो काम तमाम हो गया, बोले यही अपने आप को बनाने में लगा है, ऐसा ना हो जाए, बिकॉज व्हेन यू कोलैबोरेट विद द फ्रेंड्स एंड सो ऑन यू कीप ऑन मेकिंग कंटेंट। तो इस हिसाब से सर्टेन पीपल हैव गॉट ऑन बोर्ड, तो वो करते करते फिर मुझे लगा यार ये अब मैं पुल ऑफ कर सकता हूँ। दैट इज हाउ आई मेड दिस आत्मनिर्भर फिल्म, बिकॉज बेचैनी थी और करना कुछ ना कुछ था ही। वी मेड दिस राइट आफ्टर आत्मनिर्भर। देयर वाज दिस अनदर यूएस न्यू जर्सी डायरेक्टर इज देयर, हर नेम इज निधि। So she is also a director. She was also making content in America. So we exchange, you know, this is my upcoming project and so on. So she also exchanged. So I said, हम जब बनाए रहे थे काम हम साथ में बनाते हैं, you know. So she shared this amazing subject, which is really interesting, really nice, which is my upcoming short film. It's called another one. Yeah, so it's called Kala Chashma. So it's based on Arriba. it's based on lockdown. Yeah. एंड Right. सभी के सभी जो है काला चश्मा पहन के जो है जैसे हम आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं वैसे बात कर रहे हैं। अब ये क्या मुद्दा है और क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये फिल्म देखकर ही आपको पता चलेगा। सो डू वॉच इट। सो दैट वन विच इज गोना कम आउट, सो दैट इज आल्सो वेरी डन वेरी इनोवेटिवली, यू नो। ऐसा लगेगा सब एक ही रूम में बैठे बैठे बात करें आपस में। दैट्स द काइंड ऑफ मैजिक दे हैव क्रिएटेड। So that's amazing. So, but yet everybody is in a different their own houses. Somebody's from Delhi, somebody's from Bombay, somebody's from New Jersey, कोई Indiana से, कोई कहाँ से ऐसे. So like that. So global connection, and that's how we made this project. So that is But also. in a way, you know, I also feel कि lockdown हुआ ना तो अच्छा हो गया, because we actors, we are creative people. True, So true. much of creativity is now coming out. पहले क्या होता था, we were Absolutely. dependent, and though Correct. we could do so many things ourselves, still we were Absolutely. dependent on other people. अभी Absolutely. हम सब काम कर रहे हैं, प्लस अलग अलग cities में होके भी we all could collaborate with each other and work. Absolutely right. See, this is what the campaign which is released by BJP, you know, आत्मनिर्भर, वो सोच समझ के कुछ चीजें उन्होंने campaign को बनाई है, और उसी सब्जेक्ट को वो नाम टाइटल भी ना मैंने इसी को सोच के किया, because self dependency rather than depending on somebody else, why you do your thing, and that is why this Right. entire film with the film का जो subject था, somewhere down the line we all mentally give up. You know, in the lockdown, a lot of people have mentally been kind of, you know, had an anxiety, fear, क्या होगा, लाइफ में कैसे जिया जाएगा, आगे पैसे कैसे कमाए जाएंगे, अब मैं क्या करूंगा, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भाई लाइफ का, everybody had to think of all these things, no matter what levels they were. So, or they are, I would say. So, वो सारी चीजों को ध्यान में रखकर कि यार लोगों को काउंसलिंग भी तक करनी पड़ी. Many बिल्कुल. people are there because mentally it has distressed them so much that they kind of lost it in a way. So I at some point also had lost it, but I had to console myself. I had to speak to myself, you know, relax, सब ठीक हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी आने वाला. बिकॉज दर्द जो है इस तरह से हैवी हो जाता है ना आपके उस पे, तो आपको हर दिशा के सारे ख्याल आने लगते हैं. So that these elements were there. So a lot of people had to go through that. So this is why I said you do not need another entity or any other XYZ things to get you back on track. All you need to do is just go within. जितने साइकाट्रिस्ट हैं, जितने ये जो पीछे जो हमारे इतिहास में जो दिग्गज लोग आके जाज के जो रिनाउन है, स्टैब्लिश हैं, चाहे वो गुरु जी हैं, चाहे वो हमारे पैगंबर हैं, तो कोई उन्होंने हमेशा एक यही बात कही है, अगर देखा जाए तो, लुक विद इन, वर्ल्ड इज विद इन यू, नॉट आउटसाइड ऑफ इट. इट इज अराउंड यू, डोंट गेट इट रॉन्ग, but the real one where you live in, it's within you. So you need to get into yourself, clear your things out mentally, and you know, inspire your visions and goals in life. Keep motivating yourself and go and get it. What is there to stop you? Nobody. And it's a beautiful message that you gave. I totally relate to what you said, because lockdown was difficult for me too. Yeah. In the beginning, it was very difficult for me. Because And thankfully, चीज के हम लोग थोड़े हेडस्ट्रॉन्ग हो गए कि हमने शुरू किया दूसरी चीजें, एंड जो क्रिएटिव होता है ना उसे कोई नहीं रोक सकता, बी इट True, true, व्हाट true, एवर. अगर Correct. आप में करने की
इच्छा है तो आप करोगे. You wanted to make a movie, you made it in the lockdown, no matter Correct. how much difficult it was. You Yes, did the yes. role of a DOP, of a camera person, of an editor, of a storyteller, of an Right, actor, right. of a makeup person, of a look designer, of a stylist, of a hair True, true. artist. सारी I mean, चीजें just name it. You've done all of it. So, Abhi, you kind are a of. well-rounded actor. I think it is also going to help you when you will get on the Totally. set like old times, Yes, and you'll yes, be and able I'm to missing perform it big that. time. Yeah. That's one thing is there, yeah. But in the Right. moment, when you have the best of the talents around you or with you, you depend on them. You give them a space. भाई, this is your legacy, this is your creation. You take it on board. तो जब वहाँ पे आपको मिला तो वहाँ पे अपनी चीजों को थोड़ा सा अंदर रख लेना चाहिए, सब्सिडाइज कर लेना चाहिए. Then you just focus on your career, on your character or X Y Z या चीजें को. तो वहाँ पे उन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए. So rather than giving your input, sometimes what happens, ऐसा हो जाता है इंडस्ट्री में, आप हमें सिखा रहे हो, वाह कौन हो तुम, हाँ. वो वाले टेंशन में ना जाए, बल्कि बेटर है. बिल्कुल. So, Rizwan, where can people see Atmanirbhar? See, Atmanirbhar, I make sure that it is just there on a YouTube. The reason being so that it can be catered to everybody. अब प्लेटफॉर्म OTT प्लेटफॉर्म पे या वहां पर मैंने इसके लिए ज्यादा नहीं गया, बिकॉज वहां पे फिर सब्सक्रिप्शन वाला हिसाब किताब हो जाता है. नॉट मेनी पीपल आर फॉर्चून टू इवन अफोर्ड दैट. Now, let's say certain amount of people are there, their contents are there. I myself also subscribe to so many other platforms these days because I want to watch an amazing content which is there. Now, because I can afford it, and people out there, ये हर रीजन में छोटे छोटे गांव से लेके बड़े से बड़े जो सिटीज हैं हमारे यहाँ की, उन सबको जो है ये केटर होना चाहिए. So that is why I left it free, so that it can be useful for everybody, and there is a good message down the line, So and now at the same time ये फिल्म जो है फेस्टिवल्स वगैरह में चल रही है कहीं. So yeah, coming back to this, तो वो वहाँ पे हरकत हो रही है. जैसे वहाँ से कुछ सारी चीजें हरकत में हो जाएगी तो इंशाल्लाह we will get it on a digital platform too. Yeah. That's amazing, Rizwan, and it was really, really nice talking to you and getting a glimpse of what are the skills a new age actor requires. Thank you for being here, and I wish you all the best for Atmanirbhar and all the other movies that you've done. And I hope वो text की 43 million है ना, वो 43 million 100 million के ऊपर पहुंच जाए views. Inshallah. That is also an amazing news which I recently learned. इसका खुलासा मुझे कुछ ही दिन पहले पता चला कि 43 million हो चुके हैं इस फिल्म को. I think it is one of the privilege for me. I mean, it's an honor, to be a part of such kind of film. And my co-actor Kubra says, and I'm a huge, have been a fan of her as a human being, and really blessed to be, sharing the screen space with her. So that one thing is that 43 million still is just like a dream to me to believe that it does exist. So yeah, so that one thing is there. So अच्छा काम करते रहो, काम इसी तरह से जो है कहाँ से कहाँ पहुँचते जाएगा. ये मेरी सारे क्रिएशन जितने क्रिएटर्स हैं उनको यही एक पॉजिटिव नोट पे मैं खत्म करना चाहता हूँ. So yes, that's there, and thank you so much for having me. It's a great journey and great connecting with you, and lots of love to everyone who are जितने भी जो है हमारे लाइव सेशन में उन सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और thank you for wonderful words. And yes, Prem is there. There is Rahul, which is there. There is oh my God, so many people are there. Sorry, I haven't taken their names as well. My bad. I don't want to. No problem. They all will see you, and they all are showing their love to you. Yes, Thank you so much for being here, Rizwan. Yes, my pleasure. It was a pleasure. It was a pleasure to have you, and I wish you all the best for your future. I hope you shine like the brightest star in the universe, and inshallah, we hope will you achieve all your dreams. Together. Yeah. Sorry, what? I said, inshallah, we will share the screen presence together, inshallah, someday soon. Oh, yeah, hopefully, very soon. Bye, Rizwan. Thank you.